So, good morning, students. Today we are going to start a new chapter in English, your textbook, Beehive, and the topic of the chapter is My Childhood. In this chapter, we are going to read about the childhood of the most liked personality of India, Dr. APJ Abdul Kalam. Who can tell me why he was famous? Any one of you? Yes? Anushka, can you try? Can you try? Can you tell me why APJ Abdul Kalam was famous? Yeah. Very good, sit down. He was a great scientist and had developed so many missiles to make India a superpower in the field of missile technology. Not only he was a scientist, but he was a great man, a great mentor, a great philosopher, and was a true friend of students, many child. है ना? On many occasions, he had delivered such kind of speeches through which he had shown about the need of science and technology, about the role of students in their life, how to achieve success in their life. Okay? Before we start this chapter, there are some hints given for the better understanding of this chapter. Can you think of any scientists who have also been a statesman? APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense, and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. I think it is well known for you all, or not? He was our 11th president and also a great personality of India. In his autobiography, Wings of Fire, what is the name of autobiography of Dr. APJ Abdul Kalam? And what is the name of his vision? He had seen a vision to make India a superpower in the field of science and technology. For that, he had urged the students to read more and more in order to make India a supreme power. My dear students, you are the hope of our country. Don't forget, 75 years have been completed since we gained our independence, but still we are developing. The countries which have gained independence with us, for example, China, which is our neighbor country, and in history, the exploitation of China is known as cutting of Chinese melon. बच्चों, चाइना जो हमारे साथ ही आजाद हुआ, आज एक विकसित देश है, पर हमारा देश भारत आज भी विकासशील है। चाइना जो इतिहास में अंग्रेजों के शोषण का सबसे ज्यादा शिकार रहा है, इतिहासकार एक
टर्म यूज करते हैं, चीनी खरबूजे को काटना। खरबूजा आप समझते हैं, खरबूजा हुआ या तरबूजा हुआ, आपके घर आता है, अगर आप 4 लोग हैं तो 4 बड़े बड़े टुकड़े, और अगर लोग हैं 8 तो 8 बड़े बड़े टुकड़े, और कुछ लोग आ जाए तो फिर और छोटे टुकड़े हो जाएंगे। पर अगर बहुत ज्यादा लोग भी आ जाएंगे तो भी एक छोटा सा टुकड़ा ही सही, पर सबको मिलेगा जरूर। इसी प्रकार से बेटा चाइना को बांट दिया था अंग्रेजों ने, इसे हिस्सा नहीं मिला चाइना में। आज जो जापान है उसका भी हिस्सा था चाइना। साम्राज्यवादी शक्तियों का इतना बुरा शिकार कोई भी देश नहीं हुआ था जितना कि चाइना। और उसने अपने इतिहास को भुलाया, इतिहास को भुलाया, संघर्ष किया, मेहनत किया, परिश्रम किया, और आज अपने परिश्रम के दम पे चाइना न सिर्फ एक विकसित देश है, चाइना इज नॉट ओनली अ डेवलप्ड कंट्री, बट चाइना इज वन ऑफ द सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। चाइना आज विश्व के प्रमुख शक्तियों में से एक है। हम तो सिर्फ एक देश के कब्जे में थे, अंग्रेजों के कब्जे में, फिर भी आज तक हम विकासशील हैं। हम सरकार को दोष नहीं देंगे, दोष हमारा है कि हमने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया। क्या आप लोग ईमानदारी से पढ़ते हो? आर यू ऑनेस्ट विद योर वर्क? नो, you are sparing your time in playing PUBG and other games, and chatting on Facebook and WhatsApp. What you are doing? You are giving revenue to the foreign country while using WhatsApp and Facebook and other social networking sites. What you are doing? You are paying revenue to foreign countries, not to your country. The money is going to such country which is almost very rich, What you are doing? You are contributing in making that country more richer, so that that country would exploit your country in so many ways. आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप उस देश को पैसा दे रहे हैं जो देश पहले से ही ज्यादा अमीर है। नहीं, मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक, व्हाट्सएप, अमेरिका जो आजकल नाम हो गया है मेटा इंक, आप क्या कर रहे हैं? आप फेसबुक व्हाट्सएप यूज करके अमेरिका को और अमीर बना रहे हैं। पर चाइना ऐसा नहीं करता, चाइना ऐसा नहीं करता। चाइना तो ऐसा करता है कि लक्ष्मी पूजा के अवसर पे, दीपावली के अवसर पे आपके गणेश जी और लक्ष्मी जी भी वो बनाकर आपके देश में भेजता है। सोचिए, जरा सोचिए आप कि उसकी नजर विश्व बाजार पर है और आप बड़े आराम से बैठकर दूसरे देशों का सामान खरीद रहे हैं, दूसरे देशों के खजाने को भर रहे हैं। तो आपका देश कैसे विकसित होगा? एपीजे अब्दुल कलाम, he had a great vision. He had a great vision to make India not only science and technology enriched country, but also he wanted to make India a great economic power. So my dear students, be honest and try to work in order to make your country a developed nation. Okay, now we are going to start this chapter. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. Here, in these lines, Dr. APJ Abdul Kalam is describing about his birth. He states that he took birth in a middle class family, not poor nor rich. Not poor nor rich, in a middle class family in the island town of Rameshwaram.
Why Rameshwaram is called an island town? Can anyone of you tell me why Rameshwaram is called an island town? Rameshwaram is also famous for Hindu religion. It is a Hindu pilgrimage. रामेश्वरम हिंदुओं का एक तीर्थ स्थान है। रामेश्वरम जाना लोग पसंद करते हैं। रामेश्वरम वो जगह है बेटा जहां से राम जी ने लंका जाने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। रामेश्वरम 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए उसे एक आइलैंड टाउन कहा जाता है। आज रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य में है, पर एक समय ऐसा था जब मद्रास स्टेट हुआ करता था। जब आप जानते हैं कि जब अंग्रेजों ने भारत को आजाद किया था तो मोर देन 565 स्टेट्स थे ना, उनमें मद्रास स्टेट भी हुआ करता। तो आप समझ गए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में, है ना, रामेश्वरम नाम की जगह पर हुआ था। माय फादर जैनुल आब्दीन, इसमें एक वर्ड है अर्स्टवाइल। अर्स्टवाइल मींस फॉर्मर, पहले, है ना। जैसे इंडिया वाज नोन एज जम्बू द्वीप अर्स्टवाइल, आप कह सकते हैं यहाँ पर अर्स्टवाइल का प्रैक्टिकल यूज है कि आप कह सकते हैं कि भारत को पहले जम्बू द्वीप कहा जाता था। My father Jainul Abidin had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. अपने पिताजी के बारे में बतला रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनके पिताजी जैनुल आबिदीन पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत ज्यादा फॉर्मल एजुकेशन उनके पास नहीं था। हो सकता है साक्षर रहे, लिटरेट रहे, और न ही उनके पास बहुत पैसा था। अगर आज के युग में इनको डिसएडवांटेज माना जाए, पहले तो नहीं माना जाता था। आपका ज्यादा पढ़ा लिखा न होना पहले डिसएडवांटेज नहीं माना जाता था, पर आज के युग में अगर हम इसको एक डिसएडवांटेज माने तो उसके साथ उनके पास बहुत सारी खूबियां थी। उन खूबियों में था इनेट विजडम। एक वर्ड है यहां पर इनेट। इनेट एक वर्ड है, इसका मतलब होता है इनबॉर्न टू क्वालिटी, इनबॉर्न ऑफ क्वालिटी, जो जन्मजात आप में हो। अगर हम बात करें 4 फुटेड एनिमल्स की, 4 फुटेड एनिमल्स की बात करें तो बेटा इसमें एक इनेट क्वालिटी होता है, कोई बता सकते हो? और ये क्वालिटी वाटर से रिलेटेड है। 4 फुटेड एनिमल्स में इनेट, आप सब लोगों ने समझा इनेट क्वालिटी का मतलब? जो जन्मजात, जो जन्म से हो, जो क्वालिटी आप में जन्म से हो। तो मैं यहां बात कर रहा हूं चौपाया जानवर की, 4 पैर वालों जानवर की। तो उनमें एक क्वालिटी इनेट होता है, जन्म से ही होता है। क्या है वो क्वालिटी? जो कि पानी से रिलेटेड है। वेरी गुड आंसर, स्विमिंग, तैरना। एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले को आप पानी में फेंक दे, वो नहीं डूबेगा, वो तैरेगा। और तैरना हमारी तरह सीखने नहीं जाएगा किसी स्विमिंग स्कूल में, क्योंकि it knows swimming since its birth. It is an innate quality. It is an innate quality in it. Is it clear? I think the use of innate is very much clear to you all. Say yes or no. Yes. Okay. So his father
had some innate qualities, and that quality was wisdom. Wisdom. My dear students, if we read all the books of the world, but it may happen that if we are at very young age, we can't get the worldly experience. Even an illiterate people who has never read any book in his life will have more worldly experience than us. मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम इस दुनिया की सारी किताबें पढ़ जाएं, फिर भी सांसारिक अनुभव हो सकता है हमें सारा सांसारिक अनुभव प्राप्त, क्योंकि लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जो जीवन के अंत तक चलता रहता है। हम बात करें एक ऐसे इंसान की जिसने एक भी किताब अपने जीवन में नहीं पढ़ी है, फिर भी हो सकता है कि सांसारिक अनुभव उसके पास हमसे ज्यादा हो। ये रियलिटी है बेटा। तो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरे पापा के पास, मेरे पिताजी के पास बुद्धिमता, विजडम यानी बुद्धिमता। बुद्धिमता कहने का मतलब किसी काम को सही तरीके से करने का ज्ञान, किसी काम को सही तरीके से करने का ज्ञान, इसको बुद्धिमता कहते हैं। किसी मुश्किल परिस्थितियों से सकुशल निकलने का ज्ञान, ये बुद्धिमता कहलाता है ना। एंड अ ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, उदार व्यक्ति थे, आत्मिक रूप से उदार थे। उदार हम वैसे व्यक्ति को कहते हैं, जेनरस हम वैसे व्यक्ति को कहते हैं जो हमेशा किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। You are a generous. You will help your friends. You will help a person who is in need of your help. You will have a sense of sympathy. As it is very well said, what? Sympathy is better than gold. Is it an English saying or not? Sympathy is better than, कहा गया है बेटा कि सहानुभूति सोने से भी ज्यादा कीमती होता है। कैसे, इसको समझिए। हम बात करते हैं एक सुनार की, माना कि उसके पास 25 किलो सोना है, आज के रेट में करोड़ों रुपए का। वो कहीं जा रहा है कार से और उसका कार एक्सीडेंट हो गया, वो गिर जाता है और प्यास से तड़पता है। कोई गरीब जा रहा है जिसके पास पानी है और वो गरीब अगर उसको पानी पिला देता है तो वहां सोना कीमती हुआ। अगर उसके बदले में सोनार उस गरीब को सोना दे भी देता है 1 किलो, तो वो सोना कीमती हुआ कि वो 1 गिलास पानी कीमती हुआ, क्योंकि वो सोना उस सुनार की जान नहीं बचा सकता। वो सोने को वो पी नहीं सकता था और उस 1 गिलास पानी ने उसकी जान छुड़ाई। इसलिए इंग्लिश में बेटा कहा जाता है सिंपैथी इज बेटर देन। तो अगर आप जेनरस होंगे तो आपके अंदर सिंपैथी का गुण होगा, सिंपैथी का गुण होगा। और इसी से मिलता जुलता शब्द है इम्पैथी। सिंपैथी से मिलता जुलता शब्द है इम्पैथी। आप में से कोई इम्पैथी शब्द का मतलब बदला सकता है? प्रैक्टिकल सेल्स। सिंपैथी मतलब तो हम सहानुभूति समझते हैं, दूसरे के प्रति हमारे मन में मदद की भावना, उसके प्रति दया की भावना सहानुभूति कहलाती है। इम्पैथी का मतलब क्या होगा? इम्पैथी का मतलब कोई, आप प्रैक्टिकल सेंस आप में से कोई इम्पैथी का बदला सकता है? नहीं, मैं बदलाता हूं। इम्पैथी का मतलब होता है कि खुद को दूसरों के स्थान पे रख कर देखना कि अगर दूसरों के साथ बुरा हो रहा है तो उन्हें कैसा लग रहा होगा। जैसे तुमने, बच्चों में एक कॉमन आदत है अपने दोस्तों को चिढ़ाने की, है ना, अपने दोस्तों को चिढ़ाने की, टीज करने की। बार बार आप अपने दोस्तों को उनके कुछ निक नेम्स
इससे बुलाते हैं, आपने पढ़ा वांडा। आपने इसके पहले पढ़ा 100 ड्रेसेस वाली कहानी में, वांडा पेट्रोन्स्की को उसकी सहेलियां मैडी और बाकी सहेलियां खूब चिढ़ाती थी। लेकिन जरा सोचिए, अगर वांडा मैडी को चिढ़ाती तो मैडी को कैसा लगता? एम्पैथी इसी को कहते हैं। अगर आप किसी को चिढ़ा रहे हैं, आपने किसी को झापड़ मार दिया, आपने किसी को ऐसी बात कह दी जिससे उसे दुख पहुंचा, तो जरा ये सोचिए कि आप अगर उसकी जगह पर होते, आपको कोई चिढ़ाता, आपको कोई दुख पहुंचाता, तो आपको कैसा? इसको हम एम्पैथी कहते हैं। My dear students, is the meaning of empathy clear to you all? Is the meaning of empathy clear to you all? Yes, sir. Okay, so we will continue. He had an ideal helpmate in my mother, Ashyamma. My mother, who was my father's helpmate, who was my father's better half. मेरे पिताजी की अर्धांगिनी, मेरी माँ के रूप में उन्हें एक बेहतरीन इंसान मिला था। मेरी अम्मा एक बेहतरीन इंसान थी। I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. मुझे याद नहीं है कि मेरी माँ रोज कितने लोगों को खाना खिलाती थी, पर अगर मोटे तौर पर मैं कहूँ तो हम जितने फैमिली मेंबर्स एक साथ बैठकर खाना खाते थे, उनसे ज्यादा लोग तो निश्चित रूप से रोज हमारे यहाँ खाना खाते। अब जरा देखिए, जिस इंसान के ऐसे माँ बाप हो, जिनके पिताजी इतने जेनरस हो, जिनकी माँ इतनी जेनरस हो, जो अपने घर में एक मध्यम वर्गीय परिवार का होने के बावजूद, बच्चों आप जानते हैं कि a middle class family has to face many challenges in running a family. To cater the need of a middle class family, sometimes even every members of family has to work. If not ladies, then all gents has to work to cater the need of middle class family. And in that time, APJ Abdul Kalam's mother and father, they both were arranging meals for the numbers of people more than that of their family members. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks. Now, in the next paragraph, he is describing about the numbers of his family members. अगले पैराग्राफ में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने परिवार के सदस्यों की संख्या के बारे में बतला रहे हैं। ये कहते हैं, मेरे परिवार में बहुत सारे सदस्य थे और उन बहुत सारे सदस्यों में से मैं एक था। एक शॉर्ट बॉय, एक नाटा लड़का, rather undistinguished looks. मेरा लुक उतना स्पेशल नहीं था, कोई मेरी तरफ देखे या मैं अट्रैक्टिव लगूं या मेरे बारे में कुछ खासियत बताया जा सके। मैं अपने लुक के बारे में क्या खासियत बतलाऊं? मेरा लुक कोई बहुत स्पेशल नहीं था। Born to tall and handsome parents, और ये एक्सेप्शन था। मेरे पेरेंट्स काफी हैंडसम थे। मेरी अम्मा, मेरे अब्बा ये हैंडसम थे और लंबे थे, फिर भी मैं नाटा था और दिखने में मैं बहुत अच्छा नहीं था। We lived in our ancestral house.
our ancestral house. Beta, can you tell me the meaning of ancestral house? पूर्वजों का घर, पुराना घर नहीं. और पुराना घर we will use old house. Ancestral house मतलब पूर्वजों का घर, ऐसा घर जो हमारे पूर्वजों ने बनवाया था, हम उसी घर में रहते थे. When was built in the middle of the 19th century? Which was built? और ये हमारा जो घर था वो 19th century के मिडिल में बना था, मतलब 1850 के आसपास. It was fairly large पक्का हाउस. वो एक बड़ा पक्का हाउस, काफी बड़ा पक्का हाउस था. Made of limestone and brick. Limestone आप समझते हैं, brick आप समझते हैं. On the Mosque Street in रामेश्वरम. रामेश्वरम में जो मस्जिद वाली गली है, रामेश्वरम में जो मस्जिद वाली गली है, उस मस्जिद वाली गली में हम लोग का घर, काफी बड़ा घर था पुराने जमाने का, जो कि लाइमस्टोन और ईंटों से बना हुआ था. My austere father, simple, strict and severe. मेरे पिताजी काफी स्ट्रिक्ट थे. मेरे पिताजी काफी, बेटा पहले गार्जियंस ऐसे ही होते थे. पहले पापा अ फिगर ऑफ टेरर होते थे. पापा लोग से बहुत डर लगता था पहले, और ये अच्छा था, मेरा मानना है अच्छा था. आज की तरह नहीं, आज बच्चे अपने पापा से बहुत फ्रेंडली हो गए. ये अच्छी बात है, फ्रेंडली होना बुरी बात नहीं है, पर फ्रेंडली होकर पापा का डर समाप्त कर देना, पापा का इज्जत देना समाप्त कर देना, यह गलत है. पहले बच्चे पापा से बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं होते थे. इसका मतलब ये नहीं था कि पापा लोग बहुत क्रूअल होते थे और पापा लोग अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते थे, पर अनुशासन बनाए रखने के लिए यह बहुत जरूरी होता था. Used to avoid all inessential comforts and luxuries. आज आपके लिए स्मार्टफोन बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है. ये माना कि पिछले 2 सालों से आपके लिए स्मार्टफोन जरूरी है, क्योंकि आपकी पढ़ाई बाधित हो सकती है. Disrupted, your studies would be disrupted. But before the arrival of Corona in our country, or before the emergence of Corona in this world, many students had mobile phones of no use. Of no use. There are many educative channels on DTH, free of cost. Free of cost. There are so many channels of NCERT, of NIOS, and other channels which would provide knowledge to you all. But I don't think that you have ever seen that channels. You are fond of using mobile phones. पर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, हमारे अब्बा हुजूर ने, मेरे पिताजी ने कभी भी मेरे लिए गैर जरूरी चीजों को नहीं खरीदा. किसी कंफर्ट और लग्जरी का सामान हमको खरीद कर नहीं दिया. हमें हार्ड जीवन जीने की ट्रेनिंग दी गई, ताकि जीवन की सारी चुनौतियों का सामना हम कर सके. However, all necessities were provided for all. यद्यपि हमें आराम के, ऐशो आराम की चीजें नहीं दी गई, पर जरूरी की सारी चीजें दी गई. In terms of food, medicine or clothes, proper fooding, nutrient diet, proper clothes, medicine. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. ये कहते हैं कि मैं कह सकता हूँ कि मेरा बचपन बहुत सुरक्षित था, जरूरत की चीजों के आधार पे भी और भावनाओं के आधार पे भी. मेरे माता पिताजी मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मेरे सारे भाई बहनों का ख्याल रखते थे, और मेरा बचपन काफी सुहावना था. माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे भी कहा जाता है कि चाइल्डहुड इज द गोल्डन पीरियड ऑफ. माय डियर स्टूडेंट्स, डोंट स्पॉइल योर childhood in
all time chatting with friends. Rather chatting with friends, ask the friends to come in a field, meet with him, play some game with him. It will not only enhance your physical capacities but also will instill a sense of cooperation in you, will provide you fresh oxygen. So it is enough for today. We will carry on this chapter the next day. Till then, stay alert, stay safe. Thank you.